Then rule 91 is there, grant of provisional refund. So what it says, provisional refund in accordance with the provisions of subsection 6 of 54 shall be granted subject to condition that the person claiming the refund. So we had seen section 54(6), grant of provisional refund. So now the rule gives the condition. Condition is that the person claiming refund has, during any period of 5 years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates, not been prosecuted for any offence under the Act or under an existing law where the amount of tax evaded under this Act or under existing law. Existing law means the old laws, the excise, service tax, etc., where the amount of tax evasion exceeds 250 lakh rupees. Means you should be a clean person. You should not have been prosecuted, means put to jail. Prosecution means the criminal offence is registered against you. You are put to jail for an offence exceeding 250 lakh rupees. Okay. So if you have done a fraud in the past 5 years and have been prosecuted for an amount exceeding 250 lakh rupees, then provisional refund will not be granted to you. Okay. Simple. Then sub rule 2 says that the officer, after scrutiny of the claim and the evidence submitted in support thereof, and on being prima facie satisfied that the amount claimed as a refund under sub rule 1 is due to the applicant in accordance with 54(6), shall make an order in RFD 04 sanctioning the amount of refund due to the said applicant on a provisional basis within a period not exceeding 7 days from the date of acknowledgement under sub rule 1 or 2 of 90. So within 7 days it will be granted to you. Simple. And provided that the order issued under RFD 4 shall not be required to be revalidated. There is no need for revalidation. Even if there is a delay, it can still be granted. There is no need to revalidate it. And the third point says that the proper officer shall issue a payment advice in RFD 5 for the amount sanctioned in sub rule 2, and the same shall be electronically credited to the bank account. Whatever bank accounts you have given, so if you have given more than one, then the credit amount can be credited, electronically credited in any one of them which you have mentioned in your registration particulars. Okay, and as specified in the application for refund. Provided that the payment advice in RFD 5, this RFD 5, shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year in which the payment advice was issued. So if the payment advice was issued at the fag end of the year and the refund could not be granted within that year itself, but is to be granted in the next year, then it needs a revalidation. Then order sanctioning refund. अभी मेन जो रिफंड आता है उसका तो वहाँ लिखा है कि वेयर अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन the proper officer is satisfied that a refund under subsection 5 of 54 is due. तो 54(5) में refund था कि अगर वो satisfied है तो refund देने का है, is due and payable to the applicant. He shall make an order in form GST RFD 6 sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount, if any, refunded to him on a provisional basis under subsection 6 of 54. ये नहीं अभी जो ऊपर में देखा हमने 91 में कि 0 रेटेड वाले को अगर प्रोविजनल में दे दिया है तो जब ये फाइनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड, तो फाइनल ऑर्डर आया तो उसमें वो भी लिखा रहेगा कि आपको हमने प्रोविजनल में इतना दिया है, तो माइनस कर देगा ना उसको, तो वो लिखा है कि अगर प्रोविजनल में दिया गया है तो वो लिखा रहेगा उसके अंदर. देन अमाउंट एडजस्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड अंडर द एक्ट और अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ. एग्जिस्टिंग लॉ ने जो पुराने थे, सर्विस टैक्स में कोई ड्यू था तुम्हारा या एक्साइज में, तो वो भी माइनस करेंगे, रिफंड अमाउंट में से माइनस किया जाएगा. तो क्या क्या माइनस होगा? एक तो जो प्रोविजनल बेसिस पे दिया वो माइनस होगा,
दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड, आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर कुछ है तो वो माइनस हो जाएगा अंडर दिस एक्ट और अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, एंड द बैलेंस अमाउंट रिफंडेबल। तो इसे पूरा बना रहेगा टेबल, कितना रिफंड ड्यू है उसमें से इतना प्रोविजनल पे एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इतना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो माइनस हो जाएंगे, और अगर बैलेंस कुछ है तो लिखा रहेगा बैलेंस अमाउंट रिफंडेबल। और अगर ये एडजस्टमेंट में ही पूरा खत्म हो गया तो रिफंडेबल फिर कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसके लिए फिर और एक फॉर्म है देखो, provided that in case where the amount of refund is completely adjusted against the outstanding demand under the act or the existing law, an order giving details of adjustment shall be issued in part A of GST RFD 7। फिर उसमें पेमेंट एडवाइस नहीं निकलेगा क्योंकि पेमेंट है ही नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट करके नील हो गया है, तो ये RFD 7 में आपको आ जाएगा कि आपका इतना रिफंड ड्यू था लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद वो नील हो चुका है। Then where the proper officer or the commissioner is of the opinion, officer या फिर commissioner boss is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld, amount of refund is liable to be withheld, withheld का पॉइंट हमने देखा था, याद है आपको सेक्शन 54 में कौन से withheld के केस होते हैं। एक तो रिटर्न अगर फाइल नहीं किया उसने, दो सबसेक्शन से देखो 10 और 11 ऑफ सेक्शन 54। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ 54 में दो पॉइंट है कि या तो उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, डिफॉल्ट इन रिटर्न है, या फिर एक वो था कि पुरानी कोई लाइबिलिटी एडजस्ट करने का है, पुराने का कोई ड्यूज है तो फिर वो विथहोल्ड करके रखता है, तो वो। और 11 में क्या था, अपील वाला केस था कि अपील में गया है और वहां पर ऑफिसर को लगता है कि अमाउंट फाइनली इसको नहीं देना पड़ेगा, अपील इसका रिजेक्ट होगा और अपने पास पैसे आएंगे, तो अपील वाला केस। तो वो केसेस में क्या होगा देखो, ही शैल पास एन ऑर्डर इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म RFD 7 इन्फॉर्मिंग हिम द रीजंस फॉर विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड। अगर विथहोल्डिंग का ऑर्डर पास किया है ऑफिसर ने या कमिश्नर ने तो उसको बता देंगे कि ये रीजन से तुम्हारा रिफंड हमने विथहोल्ड करके रखा है। Then where the proper officer is satisfied for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount claimed as refund is not admissible, सब रूल ठीक कहता है कि एडमिसिबल नहीं है। भाई एप्लीकेशन डाला है उसने लेकिन ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये गलत है, योर एप्लीकेशन इज रॉन्ग, नथिंग इज टू बी रिफंडेड, तो फिर क्या करना है देखो प्रोसीजर। ये तो बहुत बुरी खबर है ना असेसी के लिए, एप्लीकेंट के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है देखो। और इज नॉट पेएबल टू द एप्लीकेंट, या तो देखो एडमिसिबल ही नहीं है या एडमिसिबल है लेकिन आपको नहीं देने का क्योंकि आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है, सो यू आर अनेबल टू प्रूव दैट यू हैव नॉट पास्ड ऑन द बर्डन टू एनी अदर पर्सन। तो ऑफिसर कहता है रिफंडेबल तो है लेकिन आपको नहीं, बायर को ढूंढ के लाओ उसको देंगे, नहीं तो फिर फंड में डालेंगे। तो वो सेकंड पॉइंट है, और इज नॉट पेएबल टू द एप्लीकेंट, ही शैल इशू अ नोटिस in form GST RFD 8 to the applicant requiring him to furnish a reply in RFD 9 within a period of 15 days of the receipt of the notice। तो उसको रीजन देंगे कि रीजन से या तो तुम्हें ये रिफंड क्लेम एडमिसिबल ही नहीं है या है भी तो तुमको नहीं देने का। अब अगर तुमको कुछ कहना है तो प्रूफ करो, 15 दिन का टाइम देंगे तुमको। तो नोटिस आएगा शो कॉज कि शो कॉज व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड और व्हाई यू शुड नॉट गेट या व्हाई यू शुड गेट द रिफंड। फिर आप जाके एक्सप्लेन करो, 15 दिन का टाइम है। फिर आपके एक्सप्लेनेशन के बाद दो चीजें होंगी, या तो वो मान लेगा तुम्हारा क्लेम, एडमिट कर लेगा और रिफंड दे देगा, या तो फिर रिजेक्ट कर देगा, दो बातें होंगी। तो देखो 15 डेज का टाइम है तुम्हारे पास, तो नोटिस देगा 15 डेज नोटिस, and after considering the reply make an order in form GST RFD 6 sanctioning the amount of refund in whole or part or rejecting the same। तो या तो एक्सेप्ट कर लेगा, सैंक्शन कर देगा, या रिजेक्ट कर देगा the said refund claim, and the said order shall be made available
to the applicant electronically and the provisions of sub rule 1 shall mutatis mutandis apply. ये जो नॉर्मल रूल है वो फिर यहाँ भी लगेगा, लेकिन आगे ये भी लिखता है कि प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन. तो विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड योर क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड. सुनवाई का मौका दिया जाएगा. And then sub rule 4 comes. It says that where the officer is satisfied that the amount refundable under sub rule 1 or 2 is payable to the applicant under 8 or 54, he shall make an order in RFD 6. The order is in RFD 6 and issue payment advice in RFD 5 for the amount of refund, and the same shall be electronically credited to the bank account which he has given along with his registration particulars or specified in the application for refund. Simple. Provided that the order issued under RFD 6 shall not be required to be revalidated. There is no requirement of revalidation, but the payment advice of RFD 5 shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year. So if it is not refunded within the same financial year and is to be refunded in the next year, then it needs a revalidation. Okay, so order is not required to be revalidated, but the refund advice is required to be revalidated. और आखिरी में कहता है कि where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub rule 1 or 2 is not payable to the applicant. refundable तो है, देखो refundable तो है लेकिन applicant को नहीं देने का, because he has passed on the burden. तो फिर क्या होगा? Not payable to applicant under subsection 8 or 54, he shall make an order in GST RFD 6. RFD 6 में order तो आ जाएगा, लेकिन amount जो है issue an advice in form RFD 5 ये भी आ जाएगा for the amount of refund to be credited to consumer welfare fund. यानी फिर पैसा कहाँ चले जाएगा? consumer welfare fund में. और उसमें फिर आखिरी 93 है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके रखा है, रिफंड क्लेम जब हम फाइल करते हैं, अगर आईटीसी का रिफंड है तो अपन उसको डेबिट मार के रखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को. तो अगर ऐसा केस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट मार के रखा हुआ है और रिफंड रिजेक्ट हो गया होली और पार्ट, तो जितने अमाउंट का रिजेक्शन हुआ है वो अपन वापस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे. तो पहले भी बता के रखा है मैंने आपको, वेरी सिंपल रूल. देखो, वेर एनी डेफिशिएंसीज हैव बीन कम्युनिकेटेड अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 90, the amount debited under 3 of 89 shall be recredited to the electronic credit ledger. Simple. और वैसे ही सेकेंड पॉइंट भी है कि where any amount claimed as refund is rejected under rule 92. एक वो डेफिशिएंसी वाला है, एक रिजेक्शन वाला है. दोनों केस में वही है कि जो अमाउंट हमने डेबिट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को वो वापस से क्रेडिट हो जाएगा. वेरी सिंपल. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल अ रिफंड शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड. ये वही फिर से पॉइंट है. अगर असेसी कहता है कि मैं अपील में नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ अपील, तो उसको ऐसे मानेंगे कि उसका जो रिफंड है वो रिजेक्ट हो गया है. हालांकि रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो खुद छोड़ के गया. जैसे होता है ना अरेस्ट एंड सरेंडर तो ये भी ओके. रिजेक्शन या सेल्फ क्या बोलेंगे उसको, रिलिंक्विशमेंट. हमने रिलिंक्विश कर दिया अपील, हमने कहा कि चलो ठीक है अपील में नहीं जाते, नहीं देना है रिफंड, चलो मान लेते हैं, मत दो, विल नॉट गोइंग टू अपील. तो ऐसे केस में भी उसको रिजेक्शन मानेंगे. कहने का मतलब कि आप वो अमाउंट को वापस से क्रेडिट कर सकते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर. गुड. तो वो एक छोटा सा रूल्स थे. फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम. सेक्शन 55 है, बहुत सिंपल है. ये वो वाले केस है जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, फॉरेन एम्बेसीज, फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उनके सब चुंगू मंगू जो अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है एंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इनको क्या रहता है कि ये जो परचेजिंग करते हैं
वॉट एवर द परचेज, उस पर जीएसटी लग के आता है, तो वो जीएसटी उनको रिफंड कर दिया जाता है ऑन देयर परचेजेस। और इसके लिए उनको वो यूनिक नंबर दे के रखा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन। तो ये परचेजिंग करते जाते हैं और फिर ये रिफंड क्लेम कर लेते हैं जीएसटी का। तो वो कैसे मिलता है देखो, उनमें उसमें दिया है, बहुत ही सिंपल है। द गवर्नमेंट में, अपना गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, on recommendation of the council by notification specify any specialized agency of the United Nations organization or multilateral financial institution and organizations notified under the United Nations Privileges and Immunities Act of 1947, then consulates and embassies of the foreign countries and any other person or class of persons as may be specified, और भी किसी को गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है। Who shall, subject to conditions and restrictions as prescribed under this rule, जो नीचे दिया है, be entitled to claim refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them. Notified supplies, all supplies नहीं, all supplies नहीं, notified supplies। तो वो notified supplies क्या है और ये restrictions क्या है, तो वो रूल में दिया है, देखो Rule 95. Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued under section 55. तो जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करेगा इसमें सब लोगों को स्पेसिफाई करेगा कि ये सब लोग हैं, ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें सब ये यूनाइटेड नेशन एजेंसीज और ये सब उसमें नोटिफाइड रहेंगे। शैल अप्लाई फॉर रिफंड इन RFD 10 once in every क्वार्टर, क्वार्टर वाइज इनको रिफंड मिलेगा, मंथली नहीं, एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर का एक एप्लीकेशन, 3 महीने का, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल ईदर डायरेक्टली और टू फैसिलिटेशन सेंटर notified by the commissioner along with the statement of inward supplies of goods or services or both in form GSTR 11। जितने परचेजिंग है इनके, इनवर्ड सप्लाईज एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका डिटेल वो सबमिट करेंगे GSTR 11 के अंदर। prepared on the basis of the statement of outward supplies furnished by corresponding suppliers in GSTR 1। suppliers के GSTR 1 में और अपना 11 ये मैच होना चाहिए, ठीक है। then an acknowledgement for the receipt of the application for refund shall be issued in RFD 2। then refund of tax paid by applicant shall be available if, तो ये कंडीशन है, देखो क्या कंडीशन है रिफंड के। नंबर 1, the inward supplies of goods or service or both were received from a registered person against a tax invoice and the price of supply covered under a single tax invoice exceeds 5,000 rupees excluding tax। यानी मिनिमम बिल अमाउंट 5,000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए चिल्लर खर्चे करोगे और उसके बिल्स आएंगे, उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। 5,000 से ऊपर सिंगल टैक्स इनवॉइस का वैल्यू होना चाहिए, टैक्स को छोड़ के, टैक्स मिला के नहीं, एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट कितना होना चाहिए, 5,000 से ऊपर होना चाहिए एक एक इनवॉइस के अंदर, सिंगल इनवॉइस। सेकेंडली, नेम and goods and service tax identification number or unique identification number of the applicant is mentioned in the tax invoice। अपना जो UIN होता है वो मेंशन होना चाहिए, इन सबका UIN होता है। और अगर मान लो कि रजिस्टर्ड लोग हैं तो इनका GSTIN नंबर होगा, तो वो मेंशन होना चाहिए। and such other restrictions or conditions as may be specified in the notification। तो नोटिफिकेशन के अंदर और भी जो कंडीशंस होंगे वो भी उनको सेटिस्फाई करने का है, ठीक है। ये कंडीशन तो है ही, इसके अलावा भी जो कंडीशन नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे उनको भी सेटिस्फाई करने का है। एंड द प्रोविजंस ऑफ रूल 92 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। 92 जो देखा हमने रिफंड देने का रूल, वो यहां पे भी लगेगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मींस इन द सेम मैनर। एंड वेयर एन एक्सप्रेस प्रोविजन, अब लास्ट में एक प्रोविजो है बहुत इंटरेस्टिंग है।
where an express provision in a treaty or other international agreement to which the president or the government of India is a party, इन अपने प्रेसिडेंट ने वो फलाने कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है या अपनी गवर्नमेंट ने उसकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है, देन अगर उस एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस सेक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो फिर क्या ओवररूल करेगा किसको? तो लिखा है द ट्रीटी और द एग्रीमेंट विल ओवररूल दिस सेक्शन एंड द रूल. तो वो लिखा है इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, सच ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट शैल प्रिवेल. means the treaty or international agreement will override this section. तो यहां जैसे कंडीशन डाला कि भाई 5,000 रुपए ऊपर बिल होना चाहिए और ये और वो, लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एग्रीमेंट में लिखा है कि हम पूरा रिफंड देंगे सभी चीजों पे, तो फिर एग्रीमेंट जो है वो प्रिवेल करेगा. फिर उसके अंदर देखो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 6/17, सेंट्रल टैक्स रेट dated 1st of July 2017. Central government on recommendation of the council hereby specifies the canteen stores department, that is called as CSD, under the Ministry of Defence as a person who shall be entitled to claim refund of 50% of the applicable central tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purpose of subsequent supply of such goods to the unit run canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD. ये कैंटीन रहता है ना, डिफेंस कैंटीन्स जिसको आप जानते होंगे, तो उनको 50% रिफंड दिया है इस सेक्शन के अंदर 55 के अंदर. तो वो जो भी चीजें परचेज करते हैं, इंडस्ट्री से परचेज करेंगे, तो उस पर जो भी जीएसटी लग के आएगा उसका 50% उनको रिफंड मिल जाएगा. और यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल टैक्स के लिए है, वैसे ही स्टेट टैक्स का भी रहेगा नोटिफिकेशन, तो दोनों का मिला के उनको 50-50% रिफंड मिल जाएगा. सिंपल. इसीलिए तो सस्ते मिलते हैं ना वहाँ गुड्स. कोई भी आपका आर्मी में अगर दोस्त होगा तो उसके साथ जाने का कैंटीन में गुड्स परचेज करने के लिए, तो काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50% जो जीएसटी है वो रिफंड हो जाता है. तो जो कैंटीन है उसको 50% रिफंड मिल जाएगा. फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन है 16/2017, ये यूनाइटेड नेशंस वगैरह लोगों के लिए जो सेक्शन 55 में मेंशन है. तो उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट hereby specifies the United Nations or the specified international organization and foreign diplomatic mission or consular post in India or diplomatic agents or career consular officers posted therein, ये सब अलग अलग नाम के ऑफिसर्स है एंड ऑफिसर्स है, for the purpose of this said section यानी 55, subject to following conditions, यानी इनको रिफंड मिलेगा of the inward supplies, subject to following conditions. Conditions क्या क्या है देखो. Number 1, United Nation or the specified international organization shall be entitled to claim refund of central tax. तो यहाँ सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, वैसे ही स्टेट टैक्स का भी रहेगा, तो वहाँ पे भी मिलेगा उनको. On the supplies of goods or service or both received by them subject to certificate from United Nations or that specified international organization, that सर्टिफिकेट बना के उनको देना पड़ेगा. किस चीज का सर्टिफिकेट? दैट सर्टिफाई दैट द गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन यूज्ड और आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ यूनाइटेड नेशंस और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हमने सर्विसेज या गुड्स लिए हैं वो ऑफिशियल यूज के लिए. नंबर 2 यानी बी, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यानी एम्बेसीज वगैरह और काउंसिलर पोस्ट और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसिलर ऑफिसर्स पोस्टेड देयरइन shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them, subject to 1, that the foreign diplomatic mission or the consular post or diplomatic agents or so on and so forth are entitled to, as stipulated in the certificate issued by the protocol division of the Ministry of External Affairs based on the principle of reciprocity. कहने का मतलब कि हमारे जो लोग, इंडिया के लोग उनके कंट्री में बैठे हुए हैं एम्बेसीज में, तो वहां उनको उसी तरह का बेनिफिट दिया जाता है क्या? डू दे गेट रिफंड ऑफ जीएसटी देयर, जैसे यूएस का काउंसलर ऑफिस इंडिया में, तो
तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो लोग यूएस में बैठे हुए हैं वॉशिंगटन डीसी में, हमारे क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसी के स्टाफ, तो उनको वहाँ रिफंड मिलता है क्या? अगर उनको वहाँ रिफंड मिलता है तो हम भी उनके लोगों को यहाँ पे रिफंड दे देंगे। तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमारे लोगों को वहाँ एग्जेम्पशन मिलेगा या रिफंड मिलेगा, तो उनके लोगों को हम यहाँ पे रिफंड देंगे। और ये सर्टिफाई कौन करेगा? प्रोटोकॉल डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सुषमा स्वराज आई थिंक कि वो है, आई डोंट नो, आई एम नॉट सर्टेन। तो वो पहला पॉइंट। सेकेंडली, दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज the head of the foreign diplomatic mission or consular post or the person of such mission or post authorized by him shall furnish an undertaking in original signed by him or the authorized person stating that the supply of service received are for official purposes of that foreign diplomatic mission or the consular post or for personal use of the said diplomatic agents, career consular officers और मेंबर्स ऑफ हिज और हर फैमिली। तो ये सर्टिफाई करके उनको देना पड़ेगा कि या तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है या फिर जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, एम्बेसी स्टाफ, उनके लिए है या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए है। थर्डली, दैट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स concerned diplomatic mission or the consulate or any officer duly authorized by him will produce a certificate that the goods have been put to use or are to be used or are in use of the mission or consulate. The goods will not be supplied further, means they are not going to sell it further, हाँ, आगे किसी को बेचने वाले नहीं है, वही यूज करने वाले हैं। or otherwise disposed of before the expiry of 3 years from the date of receipt of the goods। 3 साल तक कम से कम हम इसको रद्दी में भी नहीं बेचेंगे, डिस्पोज ऑफ भी नहीं करेंगे। And in the event of non-compliance of one, the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them, obviously. And in case of the protocol division, in case the protocol division of the Ministry of External Affairs after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or the consular post in India decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal to the foreign diplomatic mission or the consular post। तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं आगे चल के। और आखिरी में लिखा है कि रिफंड ऑफ द होल ऑफ द सेंट्रल टैक्स ग्रांटेड टू द मिशन और द पोस्ट इन इंडिया फॉर ऑफिशियल पर्पस और फॉर द पर्सनल यूज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स shall not be available from the date of withdrawal of such certificate, obviously। तो वेरी सिंपल पॉइंट, और एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहां से आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।